سب سے پہلے بات سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کی نیب نے یہ طے کیا ہے کہ 6 ہفتوں میں میاں نواز شریف، حسن حسین، مریم نواز اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز، کیا طے پایا ہے نیب ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں؟ جی اب صاحب، اس اجلاس میں جس کی صدارت چیئرمین نیب نے کی ہے، اس میں سپریم کورٹ کا جو 28 تاریخ کا فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں جو نواز شریف خاندان ہے، ان نواز شریف صاحب، ان کے جو 3 بچے ہیں، حسن حسین اور مریم نواز، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو داماد ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، اور نواز شریف صاحب کے جو سمدی ہیں اسحاق ڈار جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کے خلاف مجموعی طور پر 4 جو ریفرنسز ہیں وہ دائر کیے جائیں گے۔ جو سب سے پہلا ریفرنس ہے وہ ایون فیلڈ پراپرٹیز کے حوالے سے ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرا ریفرنس جو ہے وہ عزیزیہ کمپنی اور ہل میٹل کمپنی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے، پھر جو تیسرا ریفرنس ہے وہ ان 12 کمپنیوں کے حوالے سے ہے جو میاں محمد نواز شریف کے بچوں نے مبینہ طور پر قائم کی، اور ان کی جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں ان کے اوپر کچھ شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے۔ پھر ایک اور جو ریفرنس ہے وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف۔ وہ اسحاق ڈار صاحب کے ریفرنس یہ ہے کہ ان کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ انہوں نے جو اپنے اثاثے بنائے ہیں وہ ان کی آمدن سے زائد ہیں، تو یہ الگ سے ریفرنس ہوگا، اور یہ جتنے بھی ریفرنسز ہیں یہ راولپنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں دائر کیے جائیں گے، اور نیب جو راولپنڈی ہے وہ آفس دائر کرے گا یہ ریفرنسز۔ اچھا اعزاز، یہ بھی کہیے گا کہ 6 ہفتوں کے اندر اندر یہ ریفرنس فائل بھی کیے جائیں گے، اس کے بعد نیب کی کارروائی قانون کے مطابق کیا بنتی ہے جن کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا ان سے متعلق؟ جی اب باضابطہ طور پر نیب نے یہ جو دستاویزات تھیں جے آئی ٹی کی، اور پہلے سے موجود جو مٹیریل ہے ایف آئی اے اور نیب کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو جے آئی ٹی نے خطوط لکھے تھے بیرون ملک، اس کے تحت حاصل ہونے والے جو دستاویزات ہیں 5000 سے زائد دستاویزات ہیں۔ شکریہ آپ کا اعزاز ہے، تفصیلی طور پر آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر مولانا فضل الرحمان میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا نمائندوں سے گفتگو کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا نمائندوں سے گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے حمایت کا اعلان کیا ہے شاہد خاقان عباسی کے، اور اس سے پہلے کل جو بات کی تھی یہ کہا تھا کہ ہم اتحادی ہیں حکومت کے، اور اسی لیے ہم حکومت کا جو نمائندہ نامنیٹ کیا گیا ہے اسی کی حمایت کریں گے۔ کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی اراکین، مرکزی مجلس عاملہ کے اراکین اور دیگر ہمارے سینئر اراکین اس اجلاس میں شریک تھے۔ نئی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام کے اراکین قومی اسمبلی میں جناب خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دیں گے اور ان کو کامیاب بنائیں گے، اور اس مشکل وقت میں ہم اپنے اتحادیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مختصر سا فیصلہ ہے، آپ کو سنا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سر، آپ کو حکمران جماعت نے آپ کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار کیوں نہیں نامزد کیا؟ یہ تو کوئی سوال بنتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہے، اکثریت ان کی ہے، اور اپنی پارلیمانی پارٹی کو فل اختیار ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے، لیکن یہ تو کوئی سوال بنتا نہیں ہے کہ آپ کو کیوں نہیں بنائے گے۔ مولانا صاحب، پچھلی کیبنٹ میں اکرم درانی صاحب آپ کی پارٹی سے وفاقی وزیر تھے، اب یقیناً نئی کابینہ بھی آئے گی، کیا آپ کے یہی امیدوار ہوں گے کیبنٹ؟ میرے خیال میں کیبنٹ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائی جا رہی، بظاہر جو مجھے معلوم ہے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائی جا رہی اس میں۔ مولانا صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ اب نئے وزیر وزراء اعظم جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں عبوری ہے، پھر مستقل کے لیے بھی کچھ نام سامنے آ رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی معاملات جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں، مستقل آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟
देखिए यहाँ तो आज पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है ये करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का तो उन्वान है और इस पादाश में सियासी जंग लड़ी जा रही है। लिहाजा इस गलतफहमी में कोई न रहे कि हम इन चीज़ों को अब समझने से कासिर हैं या हमें इसका इदराक नहीं है कि इस गिलाफ़ के नीचे असल अज़ाइम क्या होते हैं और क्या छुपा हुआ होता है। तो हम बड़े मुतमईन हैं इस हवाले से कि जो कुछ सामने आया है, जिस पर दुनिया भर में तबसरे हो रहे हैं, मुल्क के अंदर तबसरे हो रहे हैं, और कोई भी इस इक़दाम को हज़ार चाहे बज़ाहिर ये अदलिया का फ़ैसला और फ़लाँ और ये और वो, लेकिन इस उन्वान के तहत अब दुनिया भर सियासत होगी। नज़रियाती सियासत का ख़ात्मा हो चुका है। अब अगर आपने अपने सियासी मद्दे मुक़ाबिल को गिराना है, उसको कौम के सामने मुलज़िम या मुजरिम करार देना है, तो यही करप्शन की चीज़ें जो हैं वही इस्तेमाल होती रहेंगी। और मैं नहीं समझता कि इसमें बज़ाहिर कोई सियासी क़ुव्वतों की कोई संजीदगी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में कोई अहमियत नहीं रखती। अब आपका पीछा करने के लिए भी एक रात को ऐलान किया गया है यानी पीछा करने के लिए ऐलान, तो आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें नीयत क्या कार फरमा है। यानी सवाल यह है कि हम एक मौक़िफ़ ले रहे हैं, उस मौक़िफ़ की आप हमें ये सज़ा दे रहे हैं कि आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं। जाए भाड़ में तुम्हारी धमकियाँ, तुम्हारी धमकियों की क्या हैसियत है जी। हम बड़े मर्दानावार सियासत कर रहे हैं, कोई हैसियत इन बातों की हमारी नज़र में नहीं है और हमें न छेड़ा जाए। हमने मुल्क में बड़े एहतियात से सियासत की है, हमने नज़रियाती सियासत की है, हमने बैनुल-अक़वामी जागीरदारियत और सरमायादारियत को चैलेंज किया है। हमारी तारीख़ उनके ख़िलाफ़ जंग से भरी हुई है। और ये लोग जो ख़ुद अटे हुए गदले किस्म के लोग, वो हमारे शफाफ दामनों पर कीचड़ उछालने के प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम बनाएंगे। ये चीज़ें जो है ये बच्चों के खेल नहीं हैं और नहीं हमें ऐसी गीदड़ भभकियों से डराने की कोशिश की जाए। हमने बड़ी मर्दानावार सियासत की है और मर्दानावार अपनी सियासत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और डालते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आप इनसे पूछें। खाकाना बासी की हिमायत का ऐलान किया है। इससे पहले फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत मसला बना हुआ था, आपको कई अतराफ से तनकीद का भी निशाना बनाया गया। क्या इस बार इस हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि कहीं ऐसा न हो कि खाकाना बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर वो आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ चले जाए? मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है और नहीं इस हवाले से, चूँकि हम अपना मौक़िफ़ देते हैं, बुनियादी तौर पर हम इस वक्त उनके साथ हैं। इश्यूज़ जब आएंगे तो उस वक्त पहले भी इश्यूज़ आए, हमने अपनी राय दी, इख्तिलाफ राय भी किया। आइंदा इश्यूज़ आएंगे तो उस वक्त हम अपनी राय देंगे। आपकी आज पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ है, इसमें तब्दील होती है, आपने बताया कि सूरत हाल पर गौर किया है। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो उनके एक मुबैना बयान के हवाले से थी, जिसमें दीगर सियासी जमातों ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। आप क्या कहेंगे उनके? मैंने सुनी नहीं है, वो सुनी नहीं है मैंने। मेरा आपसे सवाल ये कि क्योंकि अपोजिशन लीडर भी रही है, आज माशाल्लाह अपोजिशन जमातों ने 5 वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ये पहली बार पार्लियामेंट तारीख में ऐसा हो रहा है कि सारी अपोजिशन जमातें अपना उम्मीदवार लेके सामने आई हैं। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की वादत में जो ये धरपड़ पड़ी है, इसकी क्या बुनियादी वजह से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस अपोजिशन जमातें मुझे पहले भी संजीदा नज़र नहीं आ रही थी, मैं उस वक्त भी यही कहता रहा कि ज़रा अपने दोस्तों से पूछ लें कि आज किसी एक को चोर कहा जा रहा है तो आपके बारे में उनकी राय क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मारूफ किस्म की चीज़ें हैं, जानी पहचानी किस्म की चीज़ें हैं और न पहले अपोजिशन में कोई इत्तेहाद था और न आज उनके दरमियान कोई इत्तेहाद है। अच्छा मौलाना साहब, अब नुकसान तो यकीनन पहुंचा है और नुकसान पहुंचाने के असबाब सारे मौजूद हैं, लेकिन हमने तदब्बर से काम लेना है। हमने मुल्क को बहरान की तरफ नहीं जाने देना। बैनुल-अक़वामी साजिशें वो पाकिस्तान को एक बहरान की तरफ ले जाना चाहती हैं और हम आज फिर ये पैगाम सारे दुनिया को और तमाम इदारों को देना चाहते हैं कि इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा जब हम एक पेज पे होंगे
और मुल्क की सलामती के लिए हमारे दरमियान यकसुई होगी। अगर हम इस तरह इंतशार की कैफियत में रहेंगे तो शायद मुल्क का आइंदा मुस्तकबिल इस किस्म के फ़ैसले तो कम से कम ये हमारे आइंदा के मुस्तकबिल को बचाने की ज़मानत नहीं दे सकते। नई काबीना में हुकूमत के साथ आपकी नई टर्म्स कंडीशन होंगी या पुराना ही जो सिलसिला चल रहा है? नहीं, अभी हम इन हालात में कोई किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात शराइत वग़ैरह नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह कल तक हम उनके साथ थे, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी साजिशों का जिक्र करते रहे, चौधरी निसार ने भी साजिशों का जिक्र किया, बैन-उल-अक़वामी साजिशें आप भी कर रहे हैं। कौन सी कुफ्ते हैं, नाम क्यों नहीं लिया जाता? अब आप नवाज शरीफ से कहेंगे कि वो जो साजिशें आपके खिलाफ हुई हैं उनको सामने लेके आएँ? देखिए, मैं तो अपने नुक्ता नज़र बड़ी वजाहत से कह चुका हूँ कि जो इस वक्त बैन-उल-अक़वामी सतह पर ग्रेट गेम है और उसका जो एजेंडा है तरक्की पजीर मुल्कों को और मुस्लिम दुनिया को गैर मुस्तहकम बनाने का, और जिस पर वो 10-15 साल से आगे बढ़ रहे हैं और आज वो पाकिस्तान को एक नए मरहले के तौर पर देख रहे हैं, अदम इस्तेहकाम का एक नया मरहला दुनिया में लाने का। तो मैं तो अपनी बात बड़ी वजाहत के साथ कह चुका हूँ। मेरा तो एक विज़न है और जिन हजरात ने इस किस्म की बातें की हैं वो शायद अपने तौर पर जो उनकी मालूमात हैं वो अपने मालूमात कौम के साथ शेयर करेंगी। परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की, वो आपने शायद सुनी होगी, जो जिसके मंदरजात सामने आए कि उन्होंने कहा कि अदालत का जो फैसला आया है उसके बाद अब हम सोचेंगे कि कश्मीरी भारत की तरफ जाएं या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, इस पर क्या तबसरा? देखिए, अब मैंने चूँकि सुनी नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी वजाहत के साथ होनी चाहिए। एक है कश्मीरी, हर कश्मीरी पार्टी जब इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो उसके मंशूर का हिस्सा होता है इल्हाक पाकिस्तान। ताहम पाकिस्तान का बतौर रियासत के जो मौक़िफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनासबत से है, जिसमें कश्मीरियों को हक़ दिया जा रहा है कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाक़ा है, इंडिया का मौक़िफ़ है कि हमारा अटूट अंग है और हमारे साथ मुताल्लिक़ा इलाक़ा है। तो ये दो बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ दुनिया के सामने मुतारफ़ हैं और उसको इस पे खल्त न किया जाए। अब ये कश्मीरियों का अपना मामला है या उनकी पार्टियों के अपने दस्तूर का मसला है कि उन्होंने इस किस्म के जो बयानात दिए हैं वो उसके पार्टी मंशूर की मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन एक वो उसूल है कि जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत तमाम कश्मीरियों को, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं या पाकिस्तान के कश्मीरी हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इन सब के बारे में रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों या सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। मौलाना साहब, जिस आइन की जिस शिक के तहत मौलाना नवाज शरीफ साहब को उससे हटाया गया है, वज़ारत उज़्मा से हटाया गया है, अगर मुस्तक़बिल में मुस्लिम लीग नून उस शिक को आइन से निकालने के लिए कदम साजी करे तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम उसका साथ देगी? आप किस शिक की बात कर रहे हैं? 62 हाँ, 62 से ये अभी याद आ गया आप लोगों को कि इसको ख़त्म करना है। तो मेरा ख्याल में 62, 63 मसला नहीं होगा, नेब का मसला होगा। इस नेब को हटाना है या बरकरार रखना है, मसला नेब का है। इसके बारे में हमने कहा था कि ये एक डिक्टेटर का, अगर वो 62-63 एक डिक्टेटर के लाए हुए दफात हैं तो नेब भी एक डिक्टेटर का लाया हुआ इदारा है और उस इदारे को हम दवाम दे रहे हैं और यही हमारे सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा है जिस पर हमारा मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। अगर उन्होंने 18वीं तरमीम के दौरान गलती की और उसको आइन का हिस्सा बनाया जिसको आज वो भुगत रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 62-63 इतना तबाहकुन नहीं होगा जितना कि ये नेब जो है उसके बारे में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको हमें लेना चाहिए। अगर मैं तो आपसे अर्ज़ किया, कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो सियासी लोगों को खींचा जा रहा है अदालतों में, उस पर मेरा बड़ा सबके लिए एक बराबर की सोच है मेरी, और मैं उसमें किसी तरफ, देखिए रद्द अमल का सवाल है कि जो आपने एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अमल किया उसकी पार्टी ने भी एक रद्द अमल किया, अब ज़ाहिर है कि भुगतेंगे तो सारे जी। तो इस एतबार से बड़ी वजाहत के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि 62-63 के तहत एक फ़ैसला आ गया। 62-63 तो आपको हर वक्त, जबकि किसी की कोई तशरीह नहीं है, इस पर कोई कानून साजी नहीं है, तो दफ़ा 6 पे क्यों बात नहीं हो रही? उसको बरकरार रखने की बातें क्यों हो रही हैं?
उसकी तशरीह भी नहीं हुई, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। 62-63 पर भी अमल दरामद नहीं हो सकता जब तब वक्त है कि उसकी तशरीह ना हो जाए, ये मालूम ना हो जाए कि अमीन के मानी क्या हैं, सादिक के मानी क्या हैं, दीन का खातिर खा इल्म रखने वाला, इसका पारसा कौन होता है। तो इसके एक कानून साजी के तहत उसकी डिफिनेशन होनी चाहिए, उनके हुदूद का तयन होना चाहिए, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। जब तक ये तफसील नहीं होगी तब तक तो आप दफ़ा 6 के तहत दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए आपने नेब के एक इदारे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जो आज सियासी इंतकामात का सबब बन रहा है। जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कौमी वतन पार्टी चली गई, नवाज शरीफ साहब भी चले गए। अब ये बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी हैं इत्तलात आपके पास ये जी रही तो कुछ ऐसा चाहती है? अभी तक तो हमने इस हवाले से सोचा नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी जमात सूबे की सबसे बड़ी जमात है। हुक्मरान जमात तो धांधली से आई हुई बड़ी जमात है, तो हम तो हकीकी तौर पर बड़ी जमात हैं, और उस लिहाज से ज़रूर हमने इस पर गौर करना है, इस पर सोचना है। और मैंने अपने सूबाई अमीर जो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं मौलाना गुल नसीब खान साहब को यहाँ बुला भी लिया है, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हम उस पर अभी से इसके बाद एक मुशावरत शुरू करेंगे। किसको सुबह में वो अगर कोई सियासी शहीद बनने की ख्वाहिश रखते हो तो ये तो आप ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। हालत नज़ा में तौबा कबूल नहीं हुआ करता। दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या आप उनकी आमद से कोई नया बहरान पैदा होता हुआ तो नहीं देख रहे? ताहिरुल कादरी साहब खुशामदेद पाकिस्तानी हैं यार, जब वो आते हैं उनको अजनबी क्यों तस्वुर करते हो यार? ऐसे अचंबा किस्म का, जैसे वहशतनाक किस्म की कोई शख्सियत, नॉर्मल आदमी है यार, वो बड़ी अच्छी गपशप लगाता है, और कोई उसका अपना वतन है, जब चाहे आएँ जब चाहे जाएँ, ये उनकी अपनी मर्ज़ी का मामला है। और हमारे कोलीग हैं, हमारे साथ उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, तो क्यों आप उनको एक ख़तरनाक अंदाज में पेश करते हैं? अच्छा मौलाना साहब, आज आपकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ MNAs ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उनको फंड्स नहीं दिए जाते थे ये इत्तेहादी हुकूमत में, तो जो मुआहिदा आपका इत्तेहादी बनने के लिए तय पाया था मुस्लिम लीग नून के साथ, तो क्या उस पर अमल दरामद हुआ? पहले आप ये बताएं, कोई बात किसने बताई? JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसला किया है शाहिद खाकान अब्बासी को वोट देंगे और कामयाब बनाएंगे, मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों को नहीं छोड़ेंगे। काबीना में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की जा रही। साथ ही उनकी जानिब से तबसरा करते हुए कहा गया कि नज़रियाती सियासत का खात्मा हो चुका है, अब अगर आपने सियासी मुखालिफ को गिराना है तो यही करप्शन की बातें होंगी। 62-63 पर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक उसकी तशरीह ना हो। ये गुफ्तगू की जा रही थी JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद एक और शहर के स्कूल मनशियात फरोशों की जद में, कौन सा है ये शहर? इसकी तफसीलात बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में आगे चल के। लेकिन अभी बात करेंगे ऑपोजिशन वजीर आजम के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाने में नाकाम हो गई है। पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। सारी जमातों के अलग अलग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर, MQM की किश्वर जहरा, जमात इस्लामी के साहिबजादा तारिकुल्लाह और शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी अपने तजवीज़ कुनंदा गुलाम बीबी भरवाना और तायद कुनंदा एजाजुल हक के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। उनके साथ ख्वाजा आसिफ, अब्दुल कादिर बलोच, शेख आफ्ताब, जुनेद अनवार चौधरी, सायरा अफजल तारड़ और दीगर अरकान भी थे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें मुत्तफिका उम्मीदवार न ला सकें। इत्तफाक राय न होने के बाद अपोजिशन पार्लिमानी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह और नवीद कमर, PTI के हिमायत याफ्ता शेख रशीद, MQM की किश्वर जहरा और शेख सलाहुद्दीन, जबकि जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह ने कागजात जमा कराए।
नून लीग के नामजद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आजम हाउस में वो शिफ्ट नहीं होंगे। कहते हैं उन्होंने दरख्वास्त की है कि उन्हें उनके अपने घर में रहने दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काबीना के बारे में मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ ने हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने का फैसला किया है, जिसमें हिम्मत है रेफरेंस दायर कर ले, मैं मुकाबला करूंगा। जिसके हाथ साफ हों वो रेफरेंस दायर करे, शौक से सुप्रीम कोर्ट जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कोई भी समझदार वकील फैसले की हिमायत नहीं करता, हम कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। एक और अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। एतजाज एहसन कहते हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का बयान बगावत के ज़िम्मे में आता है। किसी वजीर आजम का ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। खुर्शीद शाह ने इस बारे में कहा कि राजा फारूक हैदर का बयान रियासत की पॉलिसी के मुनाफी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जंग और जियो ग्रुप के तर्जुमान ने एक मखसूस लॉबी और मीडिया की तरफ से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के एक बयान को बुनियाद बनाकर जंग जियो ग्रुप पर इल्ज़ामात और बयानबाजी की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के बारे में जंग जियो ग्रुप की इदारती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हमने हमेशा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत की है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इस्लाम, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से हमारे ग्रुप की बिला शर्त मोहब्बत किसी सबूत और सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। जंग और जियो ग्रुप के तर्जुमान के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर एक बार फिर झूठ का तोमार खड़ा कर दिया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि गोया सिर्फ जंग जियो ग्रुप ने अकेले इलाके पाकिस्तान के बारे में उनका बयान चलाया। हकीकत यह है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का बयान मुतादिद अखबारात और टीवी चैनल्स ने दिया, न्यूज़ एजेंसियों ने भी फराहम किया। जंग और दी न्यूज़ की खबरें भी इन्हीं न्यूज़ एजेंसियों से ली गईं। कई अखबारात ने यह खबर अपने नुमाइंदों के हवाले से दी। जंग और दी न्यूज़ ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के बारे में जंग जियो ग्रुप की इदारती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और हमारे फाइल इसके गवाह हैं कि हमने हमेशा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत की है। जहाँ तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की उस वजाहत का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि जिम्मेदार अंग्रेजी और उर्दू रोजनामे ने उनकी गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह शाया किया उसकी वो तरदीद और मजम्मत करते हैं। उनकी बात गलत अंदाज में शाया की गई है। अगरचे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाज़े अल्फाज में ये भी कहा कि उन्हें जंग दी न्यूज़ से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ एजेंसियों की फ्राहम करदा खबर छापी। मुझे जियो से या जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर से कोई शिकायत नहीं है। जब एक खबर का वो मुहर्रिक ही नहीं है, जब उनके किसी नुमाइंदे ने उसको कवर ही नहीं किया, तो ये बात नामुनासिब बात है। अब उनके पास एक चली गई एक उसकी जो है ना एजेंसी की खबर, लेकिन चूंकि इस मुल्क के अंदर इस वक्त इस तेज़ी से खबरें हो रही है तो शायद मुमकिन है उनको इतनी फुर्सत मिल पाई हो या उन्होंने देखा ना हो तो वो अखबार में खबर आ गई है। जंग जियो के पास मौजूद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के वीडियो क्लिप के मुताबिक राजा फारूक हैदर ने यह जुमला इमरान खान से मुतालिक कहा था। कौन सा माशरा बना रहे इसके अंदर? एक साहब हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर एक बगैर निकाह के बच्ची के बाप हैं, वो तलाक फेडरेशन के सरबराह है, वो 2 बार तलाक दे चुके हैं। क्यों? मतलब है, देखिए ना, बात यह है, गुनाह नहीं है, लेकिन तलाक जो है वो बड़ा बुरा फेल करार दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में। वो जनाब वाला 62-63 में पूरा वो कहता कि मैं हूँ जी, ये बिल्कुल। वो कल उसने कहा कि मैं कायद-ए-आज़म इसका लियाकत अली खान, इसका अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहे हो। ये जो उन पर इल्ज़ामत है यही है पाकिस्तान, इसका कायद-ए-आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा बैसित कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का और इसका कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो है। तर्जुमान के मुताबिक इस सारी तफसील से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि ARY चैनल ने एक बार फिर असल बात को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हुए बदनीयती और बददियानती से महज अपने खुब से बातिन का इजहार करते हुए सबको छोड़ते हुए अकेले जंग जियो ग्रुप को निशाना बनाया है, जिसकी एक बार फिर पुरजोर तरदीद और मजम्मत की जाती है और इन बेहुदा इल्ज़ामात पर मुकदमा दायर किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक चंद खास तरह के लोग, जिनमें एक टीवी चैनल पेश है,
कई बरसों से जंग जियो ग्रुप पर झूठे और लग़्व इल्ज़ामात लगाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ग्रुप पाकिस्तान दुश्मन और भारत और अमेरिका के साथ गठ जोड़कर उनके एजेंडे को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, और उन्हीं इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ हमारे ग्रुप ने पाकिस्तान और बरतानिया में हद तक इज़्ज़त के दावे किए। पाकिस्तान में तो ये लोग मुख्तलिफ हीलों बहानों के ज़रिए अदालतों से राह फरार इख्तियार और मुकदमात लटकाए हुए हैं। ताहम बरतानवी अदालत इस मुकदमे में ARY चैनल के खिलाफ तारीखी फैसला दे चुकी है, जिसमें इन लोगों को कसूरवार करार देते हुए भारी जुर्माने की सजा मिली और लंदन में उनके चैनल बंद भी हुए। दौरान मुकदमा उस ग्रुप के वकील ने इकरार किया कि उनके पास झूठे और फजूल इल्जामात का कोई सबूत नहीं। तर्जुमान के मुताबिक हालिया इल्जामात के झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो बातें पाकिस्तान में बिला रोक टोक कही जा रही हैं वो लंदन में नहीं दिखाई जा रही और वहाँ पर इनको नशरियात से निकाल दिया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक अगर उनके पास इल्ज़ामात के सबूत मौजूद हैं तो उनको बरतानिया में क्यों नहीं दोहराते। हालांकि हद तक इज़्ज़त के जो कवानीन पाकिस्तान में राइज हैं ऐसे ही कवानीन बरतानिया में हैं। तर्जुमान ने कहा कि उन लोगों की बेईमानी और बदनीयती का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि राजा फारूक हैदर की मज़कूरा बाला खबर उस मीडिया ने भी दी जो इस खास ग्रुप के नज़रियात का ही पैरोकार है, और उन्होंने ये खबर अपने रिपोर्टर के हवाले से दी। बददियानती की इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि ये लोग बार बार जियो को ही निशाना बना रहे हैं, हालांकि उसने ये खबर दी तक नहीं। ये इस बात का भी सबूत है कि ये लोग अपने हसद और कारोबारी रकाबत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें ना सहाफ़ती उसूलों का कोई पास है, ना इल्ज़ामात आयद करने से पहले रत्ती भर तहकीक करने की जहमत गवारा करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये लोग मेहनत के बजाय हसद की पॉलिसी अपनाए हुए हमारे ग्रुप को अवाम की नज़रों से गिराने और मुतनाज़ा बनाने के लिए जायज़ नाजायज़ की तमीज़ से महरूम हो गए हैं और अपना मकसद हासिल करने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा इस्तेमाल करना भी रवा रखते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस्लाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से हमारे ग्रुप की बिला शर्त मोहब्बत किसी सबूत और इन लोगों के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं, इसके लिए हमारा रिकॉर्ड ही काफ़ी है। तर्जुमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने दुश्मनों की तमाम साजिशों के मुकाबले में हमें सुरखरू किया और मुखालफाना चाल की वजह से हमारा चैनल बंद होने और भारी माली नुकसान उठाने के बाद इदारा उसके कारकुनों और सहाफ़ियों की अनथक मेहनत से आज फिर अपने पहले मुकाम पर सरफराज हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है कि रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ ने हमेशा कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ उठाई है और उनका जंग ग्रुप पर भरपूर एतमाद है। इतने हालात ख़राब हैं कि पत्थरों से जंग लड़ रहे हैं जी, और पत्थरों से जो हमारे पास मदद करने वाला है कोई नहीं। वह जियो है कह के खबर हमारी माशाअल्लाह के तक पहुँचाती है। इसी ज़रिए से हमारा कश्मीर का मसला भी इंशाअल्लाह हल होगा और यहाँ का भी मसला हल होगा। जिस तरह जंग और जियो हमेशा कश्मीर को उजागर करने का इन्होंने अहम रोल अदा किया है, इस तरह बाकी चैनल भी आगे आएँ और आगे बढ़ के जो है ना काम करें जिस तरह जंग और जियो कर रहा है। जियो बड़ा चैनल है, जंग बड़ा अखबार है, बानी अखबार है पाकिस्तान के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर इसके जो है जंग के कारीन है, जियो के नाजरीन है, उन्होंने देखा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस हो रही है तो उसमें जंग और जियो का किरदार है, और जंग और जियो को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी चैनल तो आजकल की पैदावार है। मीर खलील रहमान फाउंडेशन से लेकर जंग जैसे अदारे तक, ज़लज़ला हो और या तहरीक आज़ादी कश्मीर हो, हमेशा एक मस्बत किरदार अदा किया, और ये वो अदारा है जो क़याम पाकिस्तान में की जदोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा कर चुका है। अखबार का इदारिया किसी भी अखबार की पॉलिसी का अक्कास होता है। रोज़नामा जंग ने आज के इदारिये में कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी दो टोक अल्फाज में वाज़े की है और शह सुर्खी के साथ लिखा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। रोज़नामा जंग ने कश्मीर के साथ वाबस्तगी के हवाले से राजा फारूक हैदर के बयान को अपने इदारिये में शामिल किया है। रोज़नामा जंग ने अपने इदारिये में तहरीर किया है कि हफ्ते के रोज़ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के वो अल्फाज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे ही नहीं लेकिन उनसे मंसूब हुए, उसकी राजा फारूक हैदर ने पुरजोर तरदीद और मजम्मत की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाज़े किया है कि कश्मीरी अवाम इल्हाक़े पाकिस्तान के सिवा किसी ऑप्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। रोज़नामा जंग ने राजा फारूक हैदर के इतवार के बयान को सराहते हुए अपने इदारिये में तहरीर किया कि राजा फारूक हैदर ने बर वक्त मुतलका खबर की वजाहत करके पाकिस्तान के साथ लाजवाल वाबस्तगी के हवाले से कश्मीरियों के जज्बात की हकीकी तर्जुमानी की है।
इस अमर में कोई कलाम नहीं कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए लाखों जानों की कुर्बानियां दे चुके हैं। रोजनामा जंग ने इदारिये में लिखा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म जबर के बावजूद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरियों का जज्बाती नारा ही नहीं जुज़्वे ईमान भी है, और राजा फारूक हैदर की वजाहत इस हकीकत की मजहर है। कराची के तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल की रगों में अंधेरे उतारने वालों का मामला सिंध असेंबली में भी उठाया गया था। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के रुकन शर्जील मेमन ने तालिब इल्मों को ही जिम्मेदार करार दिया था। शर्जील मेमन का कहना था कि स्कूल्स के बाहर कोई मनशियात नहीं बेचता, तालिब इल्म एक दूसरे को इसका आदी बनाते हैं। महंगे तालीमी इदारों में महंगी मनशियात और सरकारी स्कूल्स में सस्ती मनशियात का इस्तेमाल होता है। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात का जहर फरोख्त करने वालों का नेटवर्क कितना फैला है और तालीमी इदारों में असल सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, मंशियात फरोशी का कारोबार जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है, इसी तरह जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी ये कारोबार जो है वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से हो रहा है। बाकायदा स्टूडेंट्स को जो है वो मंशियात फराहम की जाती है, बेची जाती है, और वो भी एक मुनज़्ज़म अंदाज में। या तो इस मंशियात के कारोबार से उस तालीमी इदारे के मुलाजमीन मुलव्विस होते हैं या फिर चौकीदार, वो जो है वो उन बच्चों को मंशियात जो है वो बेच रहे होते हैं और वो बासानी बच्चे उसको खरीद लेते हैं। ये इसमें कौन सा नशा जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो तालीमी इदारों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ रुझान हैं। जैसे कि अगर बहुत अच्छे इलाके हैं और महंगे इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वाक़ई तालीमी इदारों में जो है वो आइस, क्रिस्टल और जो है वो कोकेन नाम के नशे या पार्टी टैबलेट्स जो है वो सप्लाई की जाती हैं। वहाँ पर ये जो है वो फरोख्त होता है क्योंकि ये महंगा नशा है। ये आम स्टूडेंट्स जो है वो जो कि एक जो है वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम दूसरे इलाकों की बात करें जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी इदारे हैं, तो वहाँ पर जो है वो फिर चरस और गर्दे का नशा जो है वो आम होता जा रहा है। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो न सिर्फ अपने जो डीलर्स होते हैं, मंशियात फरोश डीलर, वो उससे जो है वो राब्ता करते हैं, उनके फ़ोन नंबर जो है वो उनके हासिल करते हैं और फ़ोन करते हैं तो वो उनको मंशियात जो है वो ला कर देते हैं। वरना जो है वो चौकीदारों की मदद से या वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मुलाजमीन की मदद से स्टूडेंट्स जो है वो ये नशा हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, आपने अपडेट किया। लोधरा से एक अफसोसनाक खबर है जहां दुनियापुर में ससुरालियों ने बहू को बदतरीन तशद्दुद के बाद जबरदस्ती तेजाब पिलाकर मार डाला। 20 साला आसिया को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा से। रजब अली मिर्जा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, क्या मालूम हो सका है क्यों ससुरालियों ने तशद्दुद किया आसिया पर, क्या कहती है पुलिस इस बारे में और क्या तफ्तीश की गई है पुलिस की जानिब से अब तक? जी, जैसा कि आपने बताया, ये वाक़या जो है लोधरा की तहसील दुनियापुर के हेडक्वार्टर दुनियापुर के अस्पताल में खातून आसिया नूरी और सना बीबी को लाया गया, जिसकी हालत बड़ी तशवीशनाक थी। उसने वहां पर मीडिया को बताया कि उसके सास और ससुर ने उसे जो है तशद्दुद के बाद तेजाब पिलाकर जो है वो तेजाब पिलाया है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद आसिया बीबी जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस से इस मामले में जब रजब अली, मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अमल में आ सकी है अभी तक? जी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है इस टाइम तक अमल में नहीं लाई जा सकी, लेकिन पुलिस मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। बहुत शुक्रिया आपका रजब अली।